Hello students. So we are discussing about the chapter electrochemistry. Very lengthy chapter. It needs really lot of time. So in this chapter there is another very important concept. This is called electrolysis. In NCERT also we have many questions on this electrolysis. And electrolysis means it is to be defined as a process of decomposition of an electrolyte. We have an electrolyte. So this electrolyte is decomposed by the passage of bypassing the electric current. And when you pass the electric current, either you take the molten salt, that is either you take the electrolyte in its molten state, or you get the aqueous solution of electrolyte. So electrolysis is defined as the electrolysis or decomposition of an electrolyte in its molten state or in its aqueous solution by the passage of current. This is electrolysis. Now definitely when the compound will break, it will form the products, it will change into some of its products. So now here we will talk about two aspects of electrolysis. First aspect, that is qualitative aspect of electrolysis, and second, quantitative aspect of electrolysis. When you say qualitative aspect of electrolysis, means during the electrolysis product क्या बनेगा, ये means quality means क्या product बनेगा, और quantitative मीन्स जो प्रोडक्ट बना वो कितने अमाउंट में बनेगा. सिंपल है. सो व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ दिस इलेक्ट्रोलिसिस, वी विल टॉक अबाउट फेराडेज लॉ. दैट वी विल डिस्कस लेटर. आज हमारा मेन फोकस है, वी आर मेनली फोकस ऑन क्वालिटेटिव एस्पेक्ट. मीन्स जब आपने किसी कंपाउंड का इलेक्ट्रोलिसिस किया तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगा. एंड रिमेंबर, मैंने बोला we are passing the current through electrolyte either in its molten state or in its aqueous solution. तो रिमेंबर, जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस पर भी डिपेंड करेगा कि यू हैव इलेक्ट्रोलाइट इन molten state और यू हैव इलेक्ट्रोलाइट इन इट्स aqueous solution. मेक इट क्लियर. नाउ हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट, सबसे पहला हमने लिया जस्ट फॉर एग्जाम्पल, वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ molten NaCl. मीन्स वी हैव टेकन NaCl, एक बड़ा कॉमन सा इलेक्ट्रोलाइट है, एंड वी हैव टेकन दिस NaCl इन इट्स मॉल्टन स्टेट. आप इसका इलेक्ट्रोलिसिस करना चाहते हो, आप इस कंपाउंड को ब्रेक करना चाहते हो, और जब आप इस कंपाउंड को ब्रेक करना चाहते हो तो आपने क्या किया, आपने एक चैम्बर में एक मॉल्टन NaCl लिया. आपने अब जब इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है बच्चों, तो वी नीड सम इलेक्ट्रोड्स ऑल्सो. सो फॉर दिस इलेक्ट्रोड वी टेक कार्बन रॉड्स. These are inert electrode. I think earlier also we discussed, as I am telling, carbon rods are inert electrode. Inert electrode का क्या अर्थ है, ये किसी प्रोसेस में कहीं कोई इन्वॉल्व नहीं होंगे. So when they will not involve, they will not interfere with the reaction as well. और भी हमारे पास inert electrodes हैं, हम पढ़ेंगे आगे एग्जाम्पल्स में. Like platinum is also an inert electrode. तो here right now I am talking, we have taken molten NaCl. And we have taken carbon rods. One rod is connected with positive terminal of the battery, so this rod also get positive charge, and another rod is connected with negative terminal of the battery, so this rod also gets negative charge. Fine. Now when we say molten NaCl means, पढ़ा है आपने बच्चों, NaCl एक आयनिक कंपाउंड होता है. तो in molten state it is dissociated into its ions. It is present as it is available as Na positive and Cl negative ion. Now we do the electrolysis. हम electrolysis कराते हैं. Now when we do the electrolysis, so what do we find? Now see what changes takes place. Now in this we have sodium ion present and we have Cl negative ion present. Now it's but natural, the carbon rod which get the negative charge, sodium ion ने उधर ही मूव करना है. मतलब इसमें कोई इशू ही नहीं है. अपोजिट आयंस विल मूव टुवर्ड्स द अपोजिट प्लेट एंड Cl नेगेटिव आयन विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट. तो Cl negative ion moves towards positive plate and positive ion moves towards the negative plate. मूव किया मीन्स
इस नेगेटिव प्लेट पे क्या हुआ, नेगेटिव प्लेट पे Na पॉजिटिव आयन पहुंचा, इट एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन, इट फॉर्म्स सोडियम एंड इट डिपॉजिट देयर ओनली। अब आप मुझे बताइए, अगर इस नेगेटिव प्लेट पर सोडियम आयन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया मीन्स इसका रिडक्शन हुआ, और अगर इसका रिडक्शन हुआ तो आप इस रॉड को बुलाएंगे कैथोड। इसमें कोई भी इशू नहीं है, यू विल कॉल इट एज कैथोड। क्योंकि मैंने आपको बोला था केमिस्ट्री में एक चीज़ ध्यान रखना, अगर कहीं रिडक्शन होता है किसी मेटल प्लेट पर ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, आपने उसको कैथोड बुलाना है, अगर ऑक्सीडेशन होता है तो आपने उसको एनोड बुलाना। तो सेम आई एम टेलिंग यू, सो दिस इज सोडियम एट कैथोड, और यू कैन से नेगेटिव प्लेट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, फॉर्म Na, डिपॉजिट एज Na, सो दिस इज कॉल्ड कैथोड। तो आप इस प्लेट को बुलाएंगे कैथोड। Similarly, the Cl negative ion, this is Cl negative ion, will move towards the positive plate. It's but natural. Now, when Cl negative ion moves towards the positive plate, Cl negative ion accept electron to form, Cl negative ion releases electron to form Cl. But natural. Cl पर negative charge है, electron release करेगा, it will form Cl. It is a kind of oxidation process. And since it is a kind of oxidation process, so you will call it as anode. आपने इसको anode करके pronounce करना है। So this is cathode and this is anode. लेकिन इसमें एक बात ध्यान देना कि जब ये प्रोडक्ट्स आपके पास बन जाएंगे, बताइए कंपाउंड ब्रेक हो गया, कंपाउंड जब आपके पास ब्रेक हो जाएगा तो आपको चेक करना पड़ेगा कि जो प्रोडक्ट बने हैं क्या वो इन्हीं एलिमेंटल स्टेट में एग्जिस्ट करता है। लाइक अगर Na बना है तो क्या Na एज एन Na एग्जिस्ट करता है, तो आंसर आपका आएगा कि यस Na एग्जिस्ट लाइक दिस ओनली। लेकिन जब Cl का ऑक्सीडेशन हुआ तो क्लोरीन एग्जिस्ट है Cl, तो आंसर आएगा नो सर, Cl एग्जिस्ट है, क्लोरीन एग्जिस्ट है Cl2। इट मीन्स दैट नाउ व्हेन Cl इज फॉर्म्ड, 2 Cl विल कंबाइन टू फॉर्म Cl2. This will be the final product. Means at cathode you will get Na and at anode the chlorine gas is released. This is electrolysis product. ये कहलाएगा क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, आपको क्वालिटी क्या प्रोडक्ट मिल रहे हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, These reactions which show only gain or loss of electron, my dear, we call them as, these reactions are considered as primary changes. What do you call? Primary changes. लेकिन टू गेट इन इट्स एलिमेंटल फॉर्म कि क्लोरीन एग्जिस्ट कैसे करेगा, तो क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और अगर क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो 2 क्लोरीन विल कंबाइन टू फॉर्म Cl2। तो Cl नेगेटिव का इलेक्ट्रॉन रिलीज करके Cl बनाना ये प्राइमरी चेंज है, लेकिन 2 Cl का कंबाइन होकर के Cl2 बनाना ये सेकेंडरी चेंज में आएगा। दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी चेंज। रिमेंबर, दिस इज व्हाट यू कॉल सेकेंडरी चेंज। एक बेसिक आइडिया दिया इलेक्ट्रोलिसिस का, लेकिन मैंने आपसे भी बोला कि इलेक्ट्रोलिसिस का जो प्रोडक्ट है इन कंटेक्स्ट ऑफ दिस क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, तो मैंने आपको बोला कि जो प्रोडक्ट है वो इस पर डिपेंड करता है कि आपने इलेक्ट्रोलिसिस कैसे किया, हाउ यू कैरिड आउट द इलेक्ट्रोलिसिस, इन व्हाट वे यू हैव कैरिड आउट द इलेक्ट्रोलिसिस। आपने मॉल्टन इलेक्ट्रोलिसिस किया, तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज देयर, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट further depend on more factor. One, तो it depends कि whether you carried out the electrolysis in molten state or in aqueous solution. Same compound in molten state gives a different product and in its aqueous solution it gives a different product. Make it very clear. Second, product also depends on electrode, what electrode we are using. राइट अभी मैं सिर्फ मॉल्टन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन को कंपेयर कर रहा हूं, फिर मैं आपसे इलेक्ट्रोड्स के कंपैरिजन की बात करूंगा। लाइक सपोज किया मैंने अभी लिया था मॉल्टन NaCl, लेट आई टेक एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, सेम कंडीशन बट ओनली थिंग इज देयर कि वी हैव एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl. आई रिपीट, आई जस्ट वांट टू मेंशन हियर, प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। पहला, कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस means either in molten state or in aqueous solution, and second use of electrode, आप electrode क्या use करते हैं। These are the 2 important points जिस पे depend करेगा। I am talking about use of electrodes, what electrodes we are actually using।
इलेक्ट्रोड्स क्या आप पढ़ेंगे, इनर्ट इलेक्ट्रोड और एक्टिव इलेक्ट्रोड। लेट द टाइम कम वी विल डिस्कस। फिलहाल मैं बात कर रहा हूं आपसे कि हमने लिया मॉल्टन NaCl। व्हाट वी हैव, we had taken molten NaCl, now we are taking the aqueous solution of NaCl. We are using carbon rods, still inert rods, inert electrodes we are using. One is connected with positive end of the battery, another is connected with negative end of the battery. Fine, this is negative plate। अब आपको यहां से क्लियर हो गया, कैथोड एनोड प्लेट के चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है, कैथोड एनोड प्रोसेस पे डिपेंड करता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, दिस इज कैथोड, तो यहां आपको मिलेगा रिडक्शन, एंड दिस इज टू बी कॉल्ड पॉजिटिव प्लेट, दिस इज कॉल्ड एनोड, यहां आपको मिलेगा ऑक्सीडेशन। लेकिन बिकॉज वी हैव एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, मैं आपसे कह रहा हूं हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl है, मींस हमको Na पॉजिटिव आयन है और Cl नेगेटिव आयन है। माय डियर, water is also there, so means H ion is also present and OH negative ion is also present. So means cathode it has two options, Na positive and H positive. Anode it also have two options, Cl negative and OH negative. When during electrolysis, जब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के दौरान दो पॉजिटिव आयंस अवेलेबल हों या दो नेगेटिव आयंस अवेलेबल हों, रिमेंबर जो इलेक्ट्रोलिसिस का जो प्रोडक्ट बनेगा वो उन आयंस के डिस्चार्ज पोटेंशियल पर डिपेंड करेगा। डिस्चार्ज, दिस इज आई एम टॉकिंग डिस्चार्ज पोटेंशियल। ये क्या होता है बेटा, हर प्रोसेस के लिए एनर्जी चाहिए, तो यहां भी कुछ एनर्जी चाहिए इनको न्यूट्रल करने के लिए, उसको हम टर्म देते हैं डिस्चार्ज पोटेंशियल। एंड इट्स बट नेचुरल, जिसको कम एनर्जी चाहिए वो पहले डिपॉजिट हो जाएगा, which has less discharge potential it will deposit early. Fine, तो हमने नोटिस किया कि out of these two ions at cathode, if I talk, because cathode have negative charge, both Na positive and H ions are available, but H ion has less discharge potential, means it needs less energy to deposit. So leaving Na positive deposit नहीं होगा, Na positive will remain in the solution, H positive deposit होगा, H positive ions का reduction होगा, twice H positive ion will accept, or you can say H positive ion will accept one electron to form H, then 2H will combine to form H2। ये reduction process चलेगी कैथोड पर, make it very clear। कारण why H ion you can say reduces or deposit, because of less discharge potential। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल लेस होगा वही डिपॉजिट होगा। सिमिलरली एट एनोड इफ वी टॉक, तो व्हाट डू वी फाइंड नाउ, वी हैव टू आयंस, Cl negative ion and OH negative ion। now in this case Cl negative ion will have lower discharge potential, which will have Cl negative ion। Cl negative ion को डिपॉजिट होने के लिए, भले ही उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, बट उसको डिपॉजिट होने के लिए कम एनर्जी चाहिए। It has lower discharge potential than OH negative ion, means now this Cl negative ion will release electron to form Cl, and then 2Cl will combine to form Cl2। So now tell what is left in this solution, Na positive ion is left and OH negative ion is left। तो यू गॉट NaOH एज ए बाई प्रोडक्ट। अगर आप थोड़ा सा याद करें, 11th में आपने पढ़ा, ये NaOH का सिंथेसिस का एक मेथड है बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl। हम यहाँ प्रिपरेशन ऑफ NaOH नहीं बता रहे हैं, हम आपको इलेक्ट्रोलिसिस बता रहे हैं। बट मेक इट श्योर, जब दो आयंस केटाइंस हैं, दो आयंस एनायंस हैं, तो वही आयन डिस्चार्ज होगा कैटाइंस, दो कैटाइंस में से जिसका लेस डिस्चार्ज पोटेंशियल होगा। लेस डिस्चार्ज पोटेंशियल मींस लेस एनर्जी चाहिए। ऐसे दो एनायंस में से वही डिस्चार्ज होगा जिसको कम एनर्जी चाहिए, जिसका लेस डिस्चार्ज पोटेंशियल होगा। सो ये आपके पास, रिमेंबर, बताइए ये कैथोड पे जो रिएक्शन चला, पहला स्टेप ये आया, इसको क्या बुलाएंगे, प्राइमरी चेंज।
मैंने बताया था ना, इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस जहां रिप्रेजेंट होगा प्राइमरी चेंज, लेकिन हाइड्रोजन रिलीज होता है H2 के फॉर्म में, सो 2H विल कंबाइन टू फॉर्म H2, तो दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी चेंज. अगेन Cl नेगेटिव आयन gives out electron to form Cl, this is primary change, and this is 2Cl combined to form Cl2, this is secondary change. And don't worry, कब कौन डिस्चार्ज होगा इसका एक सीक्वेंस है, इसकी एक सीरीज है, दैट आई विल लेट यू नो लेटर. अभी आज का कंसेप्ट समझ में आया, इसको रिवाइज करिए अच्छे से, इसको पढ़िए आप अच्छे से. मैंने आपसे बोला इलेक्ट्रोलिसिस का क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, क्या क्वालिटी बन रही है, उसमें दो फैक्टर्स हैं. पहला, इट डिपेंड्स के वेदर इट इज डन इन मॉल्टन स्टेट एंड सॉल्यूशन, और सेकंड इलेक्ट्रोड. आज मैंने आपसे सिर्फ डिस्कस किया कि मॉल्टन और एक्वस सॉल्यूशन में आपको अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे, जबकि आप सेम कंपाउंड और सेम इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं. सी इट, वॉच इट. इलेक्ट्रोड का इफेक्ट हम बाद में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.